अहमदाबाद राउंड में देखिए एसएमईज के लिए ग्रोथ में इनोवेशन का क्या है महत्व, इसके मायने और जरूरतों पर चर्चा। इंडस्ट्री के दिग्गजों से जानेंगे रोजमर्रा के ऑपरेशंस में क्या है इनोवेशन के सीक्रेट मंत्र, कैसे इनोवेशन से छू सकते हैं आसमान की बुलंदी। आपकी मुलाकात करवाएंगे युवा एंटरप्रेन्योर मेहुल पंचाल से, जानेंगे कैसे कम समय में उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज को किया अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल। स्मॉल इज बिग में आपको रूबरू करवाएंगे इनोवेटिव हेल्थ केयर चेयर बनाने वाले सकर भाई प्रजापति से, जानेंगे कैसे एक हादसे के बाद उन्हें आया इस चेयर को बनाने का आइडिया। साथ ही टीम ईबीएफ सकर भाई प्रजापति को मेंटरिंग के लिए गुजरात के इंडस्ट्री मिनिस्टर रोहित पटेल से मिलवाएगी। नमस्कार, इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 में आप सभी का स्वागत है। ईबीएफ इंडियन एसएमईज की अपनी आवाज और ये मंच उनका अपना ही खास मंच है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम पिछले 5 साल से देश के प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं और उनको ग्रोथ की राह तलाशने में उनकी मदद कर रहे हैं। सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। आज पहले राउंड के साथ हम अहमदाबाद में मौजूद हैं। आज के सेशन की थीम है बिजनेस इनोवेशन। बिफोर वी मूव अहेड, वी वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स, प्रेजेंटिंग पार्टनर इंडिया मार्ट, को-पावर्ड बाय रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एंड एसोसिएट पार्टनर थायरोकेयर। आप सभी का शुक्रिया। आइए अब ओपनिंग एड्रेस के लिए मैं इनवाइट करूंगा मधुप अग्रवाल साहब को। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मधुप जी। Good evening, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome you in the first leg of 6th edition of India Mart's Emerging Business Forum. In the past 5 seasons, we traveled across India and met more than 50,000 businesses just like you. Okay. It has been our effort to create a platform where you can interact with industry, associations, local bodies, administrators, academia, business leaders, bankers, and people who can directly help you in your businesses. We heard these solutions, we heard the problems that the businesses face in their day-to-day operation, and we try to bring them face to face with the industry stalwarts so that they can share their problems with them. In the past, we have several leaders from the industry who came here and shared their views. Prominent names being Shiv Khera, Mr. Sadhguru Jaggi, Mr. Kalraj Mishra, and I'm sure this year going forward also we will have many prominent leaders from the industry and the administration who will come forward and share their views with you. Over the years, the EBF has evolved into an influential platform for entrepreneurs to assist them in their journey. This is our way to inspire them, walk along them, and highlight not only their achievements but also share their concerns, be it technology upgrades, the imperatives of tax reforms, ways and means to match global competition, or the need to enhance entrepreneurial skills or entrepreneurship for the women in the country. Our vision has been well defined. At India Mart, it is our vision to make doing business easy for the SMEs, the real makers of India. Let's share, deliberate, learn, and understand together what the next phase of the growth-crazy MSME sector has for India's development. Thank you very much for coming here. Thank you, Mahbub Saab, for this opening address. आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे. We would like to now invite our first speaker, Mr. Pradyumna Vyas Saab. He is the Director of National Institute of Design. Sir, please join us. A big round of applause for Vyas Saab. Vyas Saab, आप समझाएं ये पूरा जो सिनेरियो है, जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, इसमें डिज़ाइनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है? आज एमएसएमई को इनोवेशन और डिज़ाइन के बारे में कुछ चर्चा करने का मौका मिला है और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही जो टाइम है वो करेक्ट है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं इनोवेशन लेड इकोनॉमी, इनोवेशन से ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। दूसरा एक चीज़ है कि खाली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, खाली मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकती। इसमें आपको ह्यूमन एंगल देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। हमारे पास वर्कर हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, हमारे पास मार्केट में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स को, सबको बुलाना चाहिए, सबकी राय लेना चाहिए और फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए,
मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करना चाहिए, सोशल साइंस यूज़ करना चाहिए, दूसरे लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसकी रिसर्च करना चाहिए, जो क्वालिटेटिव रिसर्च जिसकी बात करते हैं वो करना चाहिए। यदि हमको गुजरात में कुछ बनाना है तो गुजरात के हिसाब से सोचना है, साउथ इंडिया के लिए कुछ बनाना है तो साउथ इंडिया के लिए सोचना है, और उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पर इसको देखें तो ये जो टाइम चल रहा है, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है, इसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मैं यही चाहूँगा कि जो जितनी MSME बैठी हुई हैं, आप थोड़ा सा सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ इंजीनियरिंग और सिर्फ ये जो वेंडर वाला जो है, इससे हट के थोड़ा ऊपर सोचने की और थोड़े से गोल को हायर करने की, थोड़ा सा बड़ा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल समझें। जो लोकल मार्केट है, जो नेशन का मार्केट है, उसको के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर करना है। डिज़ाइन इज़ अ टूल एंड डिज़ाइन इज सर्टनली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर वैल्यू एडिशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे। अमन जी हैज़ ऑलमोस्ट 10 years of experience in finance and presently takes care of SME strategic business of Gujarat for Reliance Commercial Finance। तो अमन जी को मैं हैंड ओवर करूँगा, ये वो हम समझाने की कोशिश करेंगे कि वो स्पेसिफिकली SMEs के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस, उसका विंटेज, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, innovative offering, future plans, raw material availability and market accessibility. Then there comes financials. Key financial ratio क्या है, statutory compliant क्या है, credit history और rating क्या है, updated and true financials क्या है, जो कि अगर startup अगर SME है तो उसका discipline थोड़ा आपको कम दिखेगा। But we as a financer, RCF, हम लोग beyond papers को भी relevance देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि सारी चीज़ें पेपर पे फाइनेंशियल्स के अंदर अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। इट विल टेक टाइम, वो डिसिप्लिन आने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका बिजनेस मॉडल, जो उसका बिजनेस है, वो उसके साथ रह के हम समझें, उसका विजन समझें, तभी जाके हम उसको हेल्प कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड रेजिंग द फंड्स। व्हाट डू SMEs वांट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग? रिलायबल एंड गुड क्वालिटी सर्विस, ऑब्वियसली, लॉयल एंड लास्टिंग बैंकिंग रिलेशनशिप, अ 1 point कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप मैनेजर। कोई भी प्रमोटर अपने बिजनेस से बाहर निकल के ये नहीं चाहेगा कि मुझे 10 लोग फ़ोन करें। अगर मैंने कहीं से फंड लिया है तो मेरा एक इंसान को अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरा किसी भी प्रकार का कोई काम है तो हो जाना चाहिए। तो ही वॉन्ट्स अ 1 point कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अब हम आइए नेक्स्ट स्पीकर की ओर मूव करते हैं और इनवाइट करना चाहेंगे शैलेश इंद्रा दमन भाई पटवारी साहब को। सर नमस्कार, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। SME ऐसे बोलते हैं हमारी बैकबोन है, लेकिन आपको ये जान को बहुत आश्चर्य होगा कि ताइवान में 80% GDP इज़ बाय SME, जर्मनी में 75%, सिंगापुर में 50%, चाइना में 60%, एंड वी आर ओनली 70% टू अवर GDP ग्रोथ। Though we are having lot of SME, we are not contributing to GDP. These things can be scaled up, and that we chamber, we associations do it. And it is our duty to support this SME because their limitations is futuristic approach उनके पास नहीं होता है। MSMEs और बैकबोन, लेकिन उसको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ आर गुड बट इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया सर। और अब मधुप अग्रवाल साहब को इनवाइट करना चाहूँगा, वो आज के लास्ट स्पीकर होंगे। इसके बाद सवाल जवाब होगा। इनोवेशन के ऊपर बात करनी है, चर्चा करनी है। आज के ज़माने में जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी बिजनेस आज इनोवेशन से पीछे नहीं हट सकता। ये मजबूरी हो गई है इनोवेट करना। अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो यू विल डाई। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इनोवेट और गेट डेड। इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, लोगों की ज़रूरतें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि आपका प्रोडक्ट कब आउटडेट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू बी, दैट्स द डायरेक्शन, एंड दिस इज़ द हेडरूम अवेलेबल फॉर अस टू ग्रो। ये सारा जो टेक्नोलॉजी का खेल है, ये सिर्फ एडॉप्शन का खेल है और उसका यूटिलाइजेशन का खेल है। थैंक यू।